start with a new chapter that is called Consumer Protection. Can you hear me properly? This is the last chapter of this book, but we will first cover this chapter as it is a smaller chapter. Just a second. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड हियर। हिंदी में कंज्यूमर को कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब उसका हमें ख्याल रखना है, कंज्यूमर्स का ध्यान रखना है, ताकि जो सेलर्स हैं या जो इंटरमीडियरीज हैं वो उन्हें क्या ना कर पाए, एक्सप्लॉइट ना कर पाए, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। जैसा शायद आपको पता ही होगा, देयर वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाला एक्ट हुआ करता था, बट अभी लेटेस्ट एक्ट आ चुका है, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो हमें सारा नया एक्ट ही पढ़ना है। इट्स अ लॉ, क्योंकि एक्ट का मतलब आप समझते हो लॉ है ये, और अगर ये लॉ किसी ने भी वायोलेट किया तो लीगल एक्शन हो सकता है इन द कंज्यूमर कोर्ट्स। Okay, let's see. Each one of us is a consumer in one way or other. It is important for us to be an aware and informed consumer. ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें भी ऐसे बुद्धू नहीं बनना है. We should be aware and we should be informed about the goods and services available to us in the market. The above case is just one of the examples of many problems. तो ये वाला केस वो डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं क्विकली केस भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। Banks responsible for failed transactions and no cash in ATMs. What is the full form of ATM? Correct, automated teller machine. In a landmark consumer forum judgment, now if you do not get money from ATMs, it would be considered as deficiency of services on the part of bank. On May 4th, 2017, a petition in the consumer forum in Raipur was filed where the complainant मतलब जो complaint file कर रहा है, submitted photos and video recordings of 3 failed ATM transactions due to non-availability of cash banks ATM. तो आप जैसा हम जैसा ही कोई पर्सन है जिसने ये केस फाइल किया होगा कि मैं 3 ATMs में गया और तीनों में ही मुझे कैश नहीं मिला, और इस पर्सन ने प्रूफ के लिए वीडियोस और फोटोज भी सबमिट किए। In front of the forum, the bank argued that ATM runs with the internet connectivity, so at the time when users use ATM, he or she is not directly the bank client. Hence, if the said money not withdrawn from the ATM, then it cannot be termed as deficiency in service. अब एक तरफ बैंक है और एक तरफ कोई नॉर्मल पर्सन है, कंप्लेनेंट है, तो बैंक अपना लॉयर हायर करेगा, और लॉयर क्या बोल रहा है कोर्ट में कि जब आप एटीएम से पैसे निकलवा रहे हो तो आप बैंक के डायरेक्ट क्लाइंट नहीं हो। एटीएम यूज करने के लिए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, यहाँ पे आप बैंक के डायरेक्ट क्लाइंट नहीं हो, इसलिए अगर एटीएम से पैसे नहीं निकले तो इसको डेफिशिएंसी इन सर्विस नहीं कहा जाना चाहिए। ये किसने बोला? किसने बोला? हेलो, can you hear me? Yes.
आई कुड नॉट हियर यू बट अभी तक ये बात किसने बोली है कि जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, यू आर नॉट द क्लाइंट ऑफ द बैंक डायरेक्टली? किस? नो नो, नॉट द कोर्ट. कोर्ट ने तो जजमेंट देनी है, अभी जजमेंट नहीं है. ये तो बैंक का जो लॉयर है वो बोल रहा है, राइट? यस समृद्धि. The forum rejected the bank's logic completely. The petitioner has presented photo and video recording at the time of withdrawal as evidence in front of forum. Forum acknowledged that the consumers at various times go to ATM to withdraw money. Every time the message of cash not available is lack in service. But जो कोर्ट है उसने कहा ये बैंक का लॉजिक सही नहीं है. अगर कस्टमर पैसे निकलवाने गया है और वहाँ पे हर समय उसको मैसेज आ रहा है कि कैश नॉट अवेलेबल, तो ये डेफिनेटली is a dash in service. What? Deficiency in service. The forum accepted the petition. After hearing the arguments of both the parties, the forum ordered that if the bank will not provide ATM service to the customer, then it will be considered as reduction in service. Consumer forum imposed a fine of rupees 2,500 on the bank, including 1,500 as compensation for mental harassment and rupees 1,000 for legal expenses for non-availability of cash in the ATMs as deficiency in bank service. मुझे बैंक के लिए 2,500 रुपीज का फाइन क्या कोई बड़ी बात है? It's not a huge amount at all. But still यहाँ पे एक तो उस बैंक के मतलब रिकॉर्ड पे एक टार्निश हो गई है उसकी इमेज कि भाई उसके अगेंस्ट केस हो गया और वो केस भी हार गया. उसकी इमेज तो खराब हुई है, नो डाउट. और यहाँ पे जो कोर्ट है वो सिर्फ एक पनिशमेंट आपको देना चाहती है, नॉट नेसेसरली कि बहुत ज़्यादा आपसे कोई अमाउंट लेना चाहती है इन दिस पर्टिकुलर केस. बट येस, केसेस अलग अलग तरह के हो सकते हैं. कुछ केसेस में कॉम्पनसेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा ह्यूज भी हो सकता है. पर यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है कि आपकी लाइफ के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है, यू नो, इसलिए कॉम्पनसेशन का अमाउंट भी कम है, राइट? बट जो भी है, दिस इज अ डेफिशिएंसी इन सर्विस. ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है बाय द कंज्यूमर कोर्ट. अच्छा, यहाँ पे वापस आ रहे हैं. The above case is just one of the examples of the many problems that consumers face in the purchase, use, and consumption of goods and services. But very few consumers are aware of their rights given to them by the Consumer Protection Act 2019. The Consumer Protection Act 2019 has replaced the Act of 1986 and seeks to widen its scope in terms of addressing the consumer's concerns. प्रॉब्लम ये है कि कंज्यूमर्स को अपने अधिकारों का ही नहीं पता जो उनके पास है अंडर दिस एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. तो हमें भी एक इन्फॉर्म्ड और अवेयर कंज्यूमर बनना चाहिए. तो हमें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. और ना सिर्फ अधिकार, वी शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट आवर जिम्मेदारी. व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर जिम्मेदारी? Responsibilities. So we do have some responsibilities, we do have some rights, and we should be aware of all of them. Okay, have you ever thought what would be the plight of consumers? Plight matlab plight, the situation or condition if adequate protection is not provided to them. देखो, अगर कोई ऐसा लॉ नहीं होगा ना, तो सेलर्स तो अपनी मन मर्जी करते रहेंगे. वो तो कंज्यूमर्स को, भोले भाले लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ लॉज होने चाहिए. With growing competition and in an attempt to increase their sales and market share, manufacturers, sellers, and service providers may be tempted to engage in unscrupulous, please underline unscrupulous, exploitative, and unfair trade practices. ये एक फ्रेज है जो आपको लर्न करना है. अनस्क्रूपलस मतलब समथिंग जिसका मोटिव सही नहीं है, गलत मोटिव से जो आप चीज कर रहे हो. अनस्क्रूपलस, एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे कि आप डिफेक्टिव या अनसेफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, मिलावट कर रहे हो, एडल्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग आप बिल्कुल झूठी और मिसलीडिंग देते हो, होर्डिंग करते हो, ब्लैक मार्केटिंग करते हो. होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पता है क्या होता है?
एग्जाम्पल दे सकते हैं? यस, वेरी गुड. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स. होर्डिंग मतलब बहुत सारी चीजें खरीद के अपने पास रख रहे हो विद अ रॉन्ग इंटेंशन कि मैं जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आई विल सेल दिस. सो होर्डिंग इज with a wrong intention. You're buying a lot of stuff and then you're selling it higher price, taking advantage of people's need कि लोगों को ज़रूरत है इसलिए आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, तो आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो. This means that a consumer might be exposed to risks due to unsafe products, might suffer from bad health due to adulterated food products, might be cheated because of misleading advertisements or sale of spurious products, matlab artificial products, might have to pay a higher price when sellers engage in overpricing, hoarding or black marketing, etc. As a result, consumer becomes unsafe, feels cheated, and is exposed to many risks and health problems. Can business afford to ignore the interest of consumers? The market forces have changed from a seller market, that is the earlier approach of, this is a French phrase, "Quevit emptor," which means let the buyer beware. पहले के ज़माने में होता था, आप सामान खरीद रहे हो ना, आप सारा ध्यान से खरीदो. कुछ गलत हुआ तो आपकी गलती, आपने सही सामान नहीं खरीदा. But now this phrase has changed from "Quevit emptor" to "Quevit venditor." मतलब now the seller has to be beware. जो सामान बेच रहा है उसको ध्यान रखना है कि उसने सही प्रोडक्ट सेल करने हैं. Consumer is said to be the king or a queen in the free market economy. Hence, consumer protection has significance for both consumers and businesses alike. Under Consumer Protection Act 2019, the Government of India has conferred a legal protection to safeguard interests of a consumer. So you're getting some background कि अगर कोई law नहीं होगा, कोई rules नहीं होंगे, तो फिर तो जो sellers हैं, they would be tempted to indulge in unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like unsafe products, defective products, false and misleading advertisements, जो कि वैसे आज के समय में भी बहुत कॉमन है. एडवर्टीजमेंट में तो कुछ भी दिखा देते हैं. हाँ, कोई हो केस करने वाला और पूरा लीगल प्रोसेस में इंडल्ज होने वाला इंसान, तो यस, ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं इन पे भी केस हो सकता है. बट बात वही आ जाती है कि लोग कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतना हमारे पास नॉलेज भी नहीं है कि कैसे केस वगैरह फाइल करना है. एंड दैट इज़ वाई दे वांट यू टू बी अवेयर कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए लड़ेंगे, राइट? दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अवेयर एंड हैविंग नॉलेज. चलो एक बार इसका बैकग्राउंड लिखते हैं. ओके. विद ग्रोइंग कंपटीशन, आजकल हर कोई बस चाहता है पैसे कमा ले किसी भी तरह, और अगर कोई लॉज नहीं है तो फिर तो आप लोगों को एक्सप्लॉइट भी करने लगेंगे. विद ग्रोइंग कंपटीशन एंड इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज देयर सेल्स एंड मार्केट शेयर, अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सेलर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे मे बी टेम्प्टेड टू इंडल्ज इन. सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब गुड्स में फिजिकल गुड्स भी और सर्विसेज भी हैं. मान लो एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई भी जो आपको सर्विस दे रहा है, अगर वो भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है
So that is also covered under this act. And service providers may be tempted to engage in, ये लाइन आप लर्न करें, unscrupulous, कोई गलत चीज करना गलत मोटिव से, exploitative, ये आप समझते हैं, and unfair trade practices, like defective and unsafe products, adulteration, मिलावट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, जो कि काफी कॉमन है इंडिया में. बट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इनके पास भी बड़े लॉयर्स होते हैं, फिर ये मतलब अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को बचाने की. ओके, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल जैसे फेयर एंड लवली, वैसे तो अब उसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया फेयर एंड लवली का नाम? ग्लो एंड लवली. उसकी एड में जैसे दिखाते कि इट विल मेक यू दीज मेनी शेड्स लाइटर, मे बी 2 और 3 शेड्स लाइटर, जो भी है. तो उसमें अगर आप कभी नोटिस करें, नीचे कुछ छोटा सा लिखा होता है दैट दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस और प्रेजेंटेशन, समथिंग लाइक दैट, सो दैट कल को अगर कोई केस कर दे कि भाई हम तो 2 शेड्स लाइटर हुए ही नहीं, तो दे हैव अ डिफेंस. यस. ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड्स की एड्स देखते हो तो उसमें क्या लिखा होता है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. कि ये नहीं है कि गारंटी है कि आपके पैसे बढ़ेंगे ही अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, राइट? तो वो अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं. ऑल दीज आर बिकॉज उन्हें पता है कल को कोई केस हो जाए तो वी हैव अ डिफेंस. The market forces have changed from a seller market. पहले सेलर ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी मानी जाती थी. कैवीट एम्प्टर मतलब जो सामान खरीद रहा है उसी को देखना है, चेक करना है कि वो सही है या नहीं. उसने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया. लेट द बायर बिवेयर. So from a seller market we have moved towards consumer market where we say let the seller beware. Caveat vendor. Let the seller beware. तो अभी customer is the king. ठीक है. चले आगे. Alright, the next topic is importance of consumer protection. वैसे तो हमें पता लग ही रहा है कि it is very important, but इस पे proper हमें answer भी draft करना है. The concept of consumer protection is to safeguard the interest of the consumers. It adopts measures to protect consumers from unethical malpractices by businesses and provide a swift redressal of their grievances. Swift redressal का क्या मतलब होगा? Yes, quick relief or quick solution to their problems.
Okay, with regard to sale of adulterated goods such as adding inferior substances to the product being sold, जैसे मैगी पे भी केस हुआ था कि उसमें लेड कंपोनेंट्स हैं, सो दैट वुड बी काइंड ऑफ स्टार्टिंग में तो एडल्ट्रेटेड गुड, बट देन after a lot of legal battle they came back again. Sale of counterfeit goods such as selling a product of lesser value than the real product. Counterfeit होता है जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट, स्पेशली जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डुप्लीकेट बन जाता है. सो सेल ऑफ काउंटरफीट गुड्स इज ऑल्सो, आपसे पैसे तो उन्होंने रियल प्रोडक्ट के ले लिए. देखो कई बार तो हमें भी पता होता है, जैसे दिल्ली में देयर इज वन पालिका बाजार जहाँ पे हमें पता है हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे और वो हमसे प्राइस भी कम चार्ज करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज दे आल्सो नो, सेलर आल्सो नोज, बायर आल्सो नोज कि ये डुप्लीकेट है. बट अगर वो पैसे आपसे रियल के चार्ज कर रहे हैं और दे डुप्लीकेट रहे हैं तो दैट इज अ, ऑफ कोर्स दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? Sale of substandard goods such as sale of products that do not meet the prescribed quality standards. For example, helmet जो है उस पे मार्क लगा हुआ है कि ये अप्रूव्ड है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, एंड गॉड फॉरबिड किसी ने वो पहना हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए और वो हेलमेट ही बिल्कुल खत्म ही हो जाए और उसको बहुत चोट लग जाए, डेथ भी हो सकती है. सो दैट वुड बी सेल ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स दैट डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. Sale of duplicate goods. Use of malfunctioning weights and measures that lead to underweight of products. This also happens. आपने लिखा हुआ है 500 grams बट वो है नहीं, या फिर कई बार तो इवन इन फ्रंट ऑफ यू वो आप देखते नहीं और आपके साथ धोखा हो जाता है. तो हमें एज एन अवेयर कंज्यूमर देखना है, इफ दे आर मेजरिंग इन फ्रंट ऑफ अस वी हैव टू लुक. एटलीस्ट पेट्रोल भरवाने जाते हो, चेक करते हो ना, जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है और कितना उसने फिल किया, कितने पैसे वो मांग रहा है, और यू आर जस्ट नॉट बॉदर्ड. ऐसा तो नहीं होता ना. Black marketing and hoarding that eventually leads to scarcity of the product and well as a rise in the price of the same. Of course, अगर लोग hoarding करेंगे तो चीज़ों की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी और उसका प्राइस बढ़ जाएगा, and that's what they want because at that time they want to sell it, which is black marketing. Overcharging a product, that is charging a product above its MRP. ये भी गलत है वैसे और ऐसा होता है. Have you ever come across a situation where someone has charged you more than the MRP? No. वैसे ऐसा मैंने देखा है, मतलब कुछ साल पहले तो इट वाज क्वाइट कॉमन. जैसे एक लेस का पैकेट है 10 रुपीज़ का, और अगर वो आप किसी लेट्स से हाईवे पे यू ट्रैवलिंग एंड देन यू स्टॉप बाय एंड buy let's say 10 rupees का lace packet, they may ask for 12 rupees or 15 rupees. It happens. बट हम वहाँ पे इतना ज़्यादा बॉदर्ड नहीं होते, हम कहते चलो हमको हाईवे पे मिल गया सो लेट्स पे 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, नॉट अ प्रॉब्लम. बट देखा जाए दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. MRP से ज़्यादा कोई चार्ज नहीं कर सकता. अब जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे बॉटल्ड वाटर मांगते हैं, restaurant or maybe a 5-star hotel. For bottled water also you may have to pay 100 rupees, 200 rupees, yes. And then आपको ये तो गलत चीज़ है, मतलब ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है क्योंकि पानी इतना महंगा थोड़ी होता है. बट इस पे भी उन्होंने डिफेंस बनाया हुआ है रेस्टोरेंट्स ने और होटल्स ने. मोस्टली उस बॉटल पे अगर आप नोटिस करो, अब से नोटिस करना, अगर उस बॉटल पे MRP लिखा हुआ है तो वो उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते. बट इन वेरी फैंसी प्लेसेस यू डू नॉट गेट बॉटल्स विद MRP प्रिंटेड ऑन इट. MRP होता ही नहीं है उस पर. और वो कहते हैं कि हम आपको इतना अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक 5-स्टार होटल में बैठ के पानी पी रहे हैं तो हम उसका प्रीमियम तो चार्ज करेंगे ही. तो वो उनकी फेवर में पॉइंट चला जाता है. तो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, अगर तो बॉटल पे MRP लिखा है एंड यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट तो वो MRP ही चार्ज करेंगे.
और अगर बॉटल पे एमआरपी नहीं लिखा है देन दे कैन चार्ज वॉट एवर अमाउंट। एंड यू कैन से ऑल्सो, अगर वो एमआरपी से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं यू कैन काउंटर कि ये गलत है, और कोई पर्सन हो जिसके पास टाइम हो, पैसे हो, तो वो केस भी कर देगा, राइट? और करना भी चाहिए क्योंकि जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है। सप्लाइंग ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, advertisements that are misleading, that is advertisements that falsely claim a product or a service to be shown as superior quality, grade or standard when not in real. Supply of inferior services, that is quality of service lesser than the condition agreed. So these could be the problems. अब ये वाला टॉपिक हमें करना है, what is the importance of consumer protection from consumers point of view। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर देखें तो क्यों लॉज बनने जरूरी है, क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तो यह है क्योंकि हम हैं बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट, हमें पता ही नहीं है। तो इतने सारे लोग अगर इग्नोरेंट हैं तो गवर्नमेंट को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आप एड्स भी देखते हो, अगर आपने एक एड आती थी, अब तो शायद नहीं आती है, बट देयर यूज्ड टू बी दिस एड इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें वो बताते थे कि एमआरपी पे भी आप मोल भाव कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो? बार्गेनिंग कर सकते हो, बिकॉज एमआरपी इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दिस इज द मैक्सिमम दे कैन चार्ज। आप उस पे भी मोल भाव कर सकते हो। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड। ऑल्सो आजकल तो वो आरबीआई की भी बहुत सारी एड्स आती हैं, अमिताभ बच्चन इज देयर इन दोज एड्स, वेर इन वो बताते हैं कि अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है पैसों से रिलेटेड, या समथिंग लाइक आपके अकाउंट से पैसे, आपके कार्ड से पैसे निकल गए हैं बट उस पर्सन को पेमेंट नहीं आई जिससे आपने सामान खरीदा है, तो फिर क्या करना चाहिए? यू नो थिंग्स लाइक दैट। ये क्या है? ये लोगों को अवेयर करने की तो कोशिश चल रही है, राइट? एंड देन दे से नेवर शेयर योर ओटीपी विद एनीवन, यस, और दे से बैंक वुड नेवर आस्क यू थिंग्स लाइक कि अपना कार्ड नंबर बताओ और उस पे किसका नेम है। कई बार ऐसे स्कैम्स होते हैं, कॉल आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप एक बार अपना कार्ड नंबर बताएं, इसकी वैलिडिटी बताएं, इस पे क्या नेम है, सीवीवी बताएं, एंड देन दे आर एक्चुअली कमिटिंग अ फ्रॉड। सुना है आपने? यस, इट हैपन। सो अगर लोग अवेयर होंगे, उन्हें पता होगा, तो ये चीजें नहीं होंगी। और इसीलिए कहा जाता है बैंक कभी आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, कार्ड नंबर बताओ, नेम क्या उस पे ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा बैंक से पूछ सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स बता दो जस्ट टू कंफर्म। तो अगर आप अवेयर हैं तो आपके साथ ऐसा स्कैम नहीं होगा। फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, first point, so many people are ignorant, that's why it becomes important to talk about consumer protection in the light of widespread ignorance of consumers about their rights, ना उनको उनके rights के बारे में पता है, और ना ही reliefs जो उनको मिल सकते हैं and reliefs available to them, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है that we should educate them। यहाँ तक लिखें। लिख लिया?
then it becomes necessary to educate them about the same. And that's why we should talk about consumer protection. Second point. Sorry. Unorganized consumers. देखो, अब आपके साथ गॉड फॉरबिड कोई भी ऐसा स्कैम होता है, या आप यू कम अक्रॉस अ गुड विच इज जिससे आप डेंजर में हो सकते हैं. जैसे मान लो आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदा और उसने आपको करंट लगा दिया और शॉक लग गया आपको, इलेक्ट्रिक शॉक, और उससे मे बी आपके कुछ डैमेज हो गया घर में भी या फिजिकली भी, यू आर इंजर्ड. सो अब अगर आपको ठीक है, पता है कि यू कैन फाइल अ केस, बट मे बी यू डू नॉट हैव इनफ मनी और रिसोर्सेज और नॉलेज कि कैसे करना है, तो अगर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन होगी तो आप उसके पास जा सकते हैं. वो आपको पूरा गाइड करते हैं कि आप किस तरह से लीगल प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं. तो यही वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा हैं अनऑर्गेनाइज्ड. We should make them more and more organized. We should make more and more consumer associations so that it's easier for people to get the legal remedy. Yes? Consumers need to be organized in the form of consumer organizations. In the form of consumer organizations जो उनके इंटरेस्ट का ध्यान रख सके, which would take care of their interests. और विषय कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़रूरी है. अब इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं और उसमें से काफ़ी सारे ख़राब भी हो सकते हैं. अब नॉर्मल लोगों के पास तो इतना टाइम भी नहीं होता, पैसे भी नहीं होते कि वो पूरी रिसर्च करें कि कौन सा प्रोडक्ट सच में ख़राब है, वो लेबोरेटरी जाएं, टेस्टिंग करवाएं कि अच्छा ये प्रोडक्ट सच में ख़राब है. ये सब चीज़ें नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, मोस्टली नहीं कर पाते. तो ये काम कौन करते हैं? कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, किसमें क्या मिलावट है, किसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे काम कर सकती हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. फिर वो कह रहे हैं इंडिया में वैसे हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट इतनी ज़्यादा वो पावरफुल नहीं है. दो in India we do have consumer organizations which are working in this direction. But these need to become powerful enough to protect and promote the interests of consumers. Protect and promote the interests of consumers. Then, और क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में बात करना? बिकॉज बहुत सारे लोगों को किया जाता है what? Exploit. Widespread exploitation of consumers. By all this, यही आपको लर्न करना है ना, unscrupulous, exploitative and unfair trade practices like
defective and unsafe products, adulteration, black marketing, hoarding, false and misleading advertisements, ये तो learn कर लो, हर जगह इस चीज़ को आप लिख सकते हो. Consumers might be exploited by unscrupulous, exploitative and unfair trade practices, like defective and unsafe products, adulteration, repeat हो रही है वही चीज़, false and misleading advertisement, advertising you can say, black marketing, hoarding, etc. तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अगेंस्ट सच मैल प्रैक्टिसेस ऑफ दी सेलर्स. कंज्यूमर्स नीड प्रोटेक्शन against such malpractices of the sellers. So we have 3 points here: consumer ignorance, then unorganized consumers, and widespread exploitation of consumers, right? आगे चले बच्चे. अब हम देखते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. आप कहोगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बिजनेसेस के लिए तो ये अच्छी बात है ही नहीं कि उनको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आज के समय में, जब इतने सारे लोग अवेयर हो रहे हैं या फिर मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो बिजनेसेस है वो ज़्यादा टाइम तक बच नहीं सकते इफ़ दे आर एक्सप्लॉइटिंग पीपल. कुछ समय तक हो सकता है वो बच जाए, बट देन वन डे विल कम कि उनका सब कुछ रिवील हो जाएगा. ज़्यादा लंबे समय तक आप लोगों को आज के समय में एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. सो ये वही टॉपिक चल रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस नाउ. जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल, रियल एस्टेट कंपनी, विच वन, एक बहुत एक्सट्रीम जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, सुपरटेक, डिमोलिश कर दिया उनका स्ट्रक्चर. दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन. तो ज़्यादा समय तक आप बच नहीं सकते, एक दिन तो आएगा ही जब सब खुलासा हो जाएगा. ओके, सो इसलिए बिजनेसेस को भी ज़रूरी है कि वो ध्यान रखें अपने कंज्यूमर्स का. अगर आप अपनी लंबे समय के लिए तरक्की चाहते हो, प्रॉफिट्स चाहते हो, तो खुद ही समझ जाओ कि कंज्यूमर्स को अच्छे से सर्व करना ही पड़ेगा. उनको एक्सप्लॉइट करके आप लंबे समय तक प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते. सो इट इज़ इन योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट दैट यू टेक केयर ऑफ द कंज्यूमर्स. तो जो बड़े बड़े समझदार बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े भी क्या मतलब जो समझदार बिजनेसेस हैं, वो समझते हैं ये बात को कि हम कंज्यूमर्स का ध्यान रखेंगे तभी हम अच्छे प्रॉफिट्स कमाएंगे इन द लॉन्ग रन. समझदार बिजनेसेस के लिए हम लिख रहे हैं एनलाइटेंड बिजनेसेस रियलाइज
that it is in their long-term interest. It is in their long-term interest to satisfy their customers. To satisfy their customers. क्योंकि जब आपके कस्टमर्स खुश होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, तो वो रिपीट सेल्स करेंगे और एक पॉजिटिव फीडबैक देंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेंगी. Satisfied customers not only lead to repeat sales but also provide good feedback to prospective customers. Good feedback to prospective customers and thus help in increasing the, बस इतना ही बहुत है, prospective customers thus business firms should aim at long-term profit maximization, long-term profit maximization through customer satisfaction, through customer satisfaction. ठीक है, बताइए बात समझ में आती है? Okay. So it is in the long-term interest of businesses to satisfy the customers, because satisfied customers not only lead to repeat sales but also provide good feedback to prospective customers. Then खुद ही आप समझ जाओ कि आप सोसाइटी से इतना कुछ लेते हो. As a business you take so many inputs from the society, तो of course आपको फिर सोसाइटी को बदले में अच्छी चीजें ही देनी चाहिए. ये भी तो एक moral justification है. So business uses society's resources. सोसाइटी से आप इतने इनपुट्स लेते हैं तो बदले में उनको अच्छे चीजें दो ना, ताकि लोगों का आप में क्या बना रहे? Trust or confidence, right? Business organizations use resources which belong to the society. अब इसमें सब कुछ ही आ जाता है, which belong to the society. Even labor that you use, even the finance that you take from banks, ये सब सोसाइटी से ही लिया है आपने. They thus have a responsibility to supply such products and render such services which are in public interest. और जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस आप में कम ना हो, and would not impair public confidence in them, would not impair public confidence in them. बताइए बात समझ में आती है?
राइट विषय. यस सारा. चलिए, तो आज के लिए विषय हम इतना ही कर रहे हैं. इससे अगला पॉइंट वैसे क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि यही है एक्चुअली कि हम सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं तो हमें बदले में फिर उनका ध्यान रखना चाहिए. किनका ध्यान रखना चाहिए? स्टेक होल्डर्स का, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सबका ही हमको ध्यान रखना चाहिए. सो आई एम जस्ट रीडिंग इट वंस फ्रॉम द बुक. अ बिजनेस हैज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स. Business organizations make money by selling goods and providing services to consumers. Thus, consumers form an important group among the many stakeholders of business, and like other stakeholders, their interest has to be well taken care of. जैसे आप बाकी stakeholders का ध्यान रखते हो, तो सबसे ज़्यादा ध्यान तो आपको consumers का रखना चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा important stakeholder है. Stakeholder कौन होते हैं? जिनको भी कंपनी के होने ना होने से फर्क पड़ता है. Those are the stakeholders, right? तो ये हम लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में, and then we will slowly move on and finish this chapter in the coming week.